Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 2, Kings, Farmers, and Towns. And we have already done, you can say, major political changes that were witnessed during this period. And then, along with that, we also had a kind of discussion on the idea that we have about the kind of life that was led by the rural society at that time. And we also had a kind of small discussion on, you can say, जो categorization होती थी in terms of social differences जो रूरल सोसाइटी में होते थे कि लैंड ओनर्स जो होते थे उनको वेलएलआर बोलते थे, जो प्लोमैन होते थे उनको उजवार बोलते थे, और जो स्लेव्स होते थे उनको आदिमाई बोलते थे. ठीक है, this is what we have already done. And then we also had discussion about the land grants in our previous class. Basically हमने देख लिया था कि land जो है वो एक बहुत important resource है. Basically आपकी जो social status है वो बहुत हम बोलेंगे हद तक या to a great limit it basically depended on the area of land you possess and the control that you have over that area. सो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लैंड ग्रांट से, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि लैंड ग्रांट्स जो है अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन से किंग एंड द रिलीजियस जो सेक्शन है, जैसे ब्राह्मण हो या रिलीजियस हेड हो, वो जनरली उनको दी जाती थी लैंड ग्रांट्स, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं स्टोन या कॉपर प्लेट्स के ऊपर. So obviously अपने को they even tell us lot of information about other things. जैसे हमने पढ़ा था about the story of प्रभावती गुप्ता कि वैसे तो generally women के पास possession नहीं होता था land का, but she was an exception to it because she became the queen and because her son was minor and you can say could not rule, so she was ruling on behalf of her son. That is why she had the control over the land and she did grant it to the Brahmins and the religious institutions. So this is what we actually had a kind of discussion on land grants and the kind of elites that used to live in those areas. And then we also had a kind of description of the boxes regarding जैसे हर्षवर्धन वाला जो अपना inscription tha, which was basically telling us about, you can say, जो इनके time period में जो forest dwellers वगैरह थे वो क्या काम करते थे. Then प्रभावती ने कैसे जो donate किया था या land grants किए थे और special उनको हम बोलेंगे grants किए थे to the Brahmins. ठीक है, this is what we have already done. Now we move on to our new topic, which is towns and trade. So because we already know कि यहाँ पे जो rural areas है वहाँ पे कैसी condition थी, this is what we have already done. Now we want to know more about the cities as well, because ठीक है हमने political conditions के हिसाब से तो देख लिया है कि what were the condition if we talk in terms of the kind of political rule that existed at that time. और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि उस टाइम पीरियड में मतलब जो किंग्स हैं उनका कैसा रोल था और कुछ इम्पोर्टेंट एलिट्स का. बट वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इन द अर्बन एरियाज एज वेल. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्बन एरियाज, दैट इज टाउन्स एंड ट्रेड. तो ऑब्वियसली जब हम टाउन और ट्रेड की बात यहाँ पे करेंगे तभी हम नोटिस करेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो हम जिस टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं, दैट इज 6th सेंचुरी BCE से लेके 6th सेंचुरी CE तक, उस टाइम पे हम देखेंगे कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, अर्बन सेंटर्स वर डेवलपिंग in, you can say, various parts of our subcontinent from around 6th century BC. Now हमने जब पढ़ा, when we started with this chapter and basically जब हमने इस chapter से related मेन पॉलिटिकल पावर की बात की थी, तो जब हमने जनपद जन महाजनपद की बात की थी
उसी टाइम पे अपने को कुछ चीजें तो पता चल गई थी कि जो सेंटर्स हैं वो बेसिकली उनके जो कैपिटल एरिया होते थे वो मेन अर्बन सेंटर्स होते थे। तो many of the capitals of महाजनपद जो है they were becoming more urbanized area. ऑलमोस्ट हम बोलेंगे ऑल द टाउन्स जो जितने भी हम देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स वो होंगे बेसिकली टू द एरिया रिलेटेड समवेयर नियर द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जहाँ पे रिवर्स होंगी ना उनके आसपास ही हम नोटिस करेंगे कि टाउन्स एंड सिटीज डेवलप होंगी। देयर आर मेनी रीजंस टू इट। ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम इसको ट्रेड से कनेक्ट करना चाहें तो ऑब्वियसली जो ट्रेड है तो मेन उस समय रिवर रूट अपना रिवर रूट ही था ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी रिवर होगी वहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रेड तो डेवलप होगा ही होगा एंड ट्रेड डेवलप होगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां पे टाउन्स भी डेवलप होंगी। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, जिसके हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे कि पाटलिपुत्र वी नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स अंडर द महाजनपद एंड देन आफ्टर दैट आल्सो। तो मेनली ये इसीलिए पॉलिटिकल सेंटर भी था बट ये रिवराइन रूट भी था। इसके अलावा अपने पास उज्जैनी है, उसके पास यहाँ पे ये जो उज्जैनी की बात करेंगे ये एक ऐसी एरिया है जो चलो ठीक है फिर भी लैंड रूट्स के अराउंड है बट वॉट एवर इट बी बेसिकली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इन एरिया से ट्रेड होता था, इसीलिए अगेन दिस ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। देन वी हैव वन मोर पुहार विच इज नियर द कोस्ट, जहां से ऑब्वियसली ट्रेड जो है सी रूट के थ्रू इन द अदर एरियाज ऑल्सो ट्रेड कैन बी डन। उसके अलावा बहुत सारी सिटीज और है इस टाइम पे जो मेन सेंटर्स थी हमारी कल्चरल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का। तो स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात कर ले तो एज हम अगर मथुरा की बात करें तो थोड़ा सा इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। मथुरा जो है बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था मोर देन अराउंड 2500 years अगो से पहले से। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समवेयर क्यों एक तरीके का ये क्रॉस रोड्स था बिटवीन टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। यानी कि ट्रेड और जो पूरा ये अपना ट्रैवलिंग और ट्रेडिंग होती थी उसके सेंटर में था, ये क्रॉस रोड्स पे था। कौन से एरिया से? जब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ कोई जाता था या फिर कोई नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था तो सेंटर जो है वो मथुरा होता था। तो सिमिलरली इट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी देयर। देन इसके अराउंड हम देखेंगे कि ये जो सिटीज होती थी ये स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बोलेंगे एज वी हैव सीन की मथुरा की हमने स्पेसिफिक बात की कि एक तरीके से क्रॉस रोड्स है नॉर्थ से साउथ के बीच में और नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट के बीच में। तो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट था कमर्शियली भी बट कल्चरली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड एज वेल एज पॉलिटिकली ऑल्सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now this is again this box that is given. Let us quickly have a look at this as well. Each city had a history of its own. Especially अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो we know कि it basically पाटलिपुत्र जो है it began as a village, ठीक है, जिसका नाम था पटलीग्राम। उसके बाद क्या हुआ 5th century BC में मगध रूलर ने ये डिसाइड किया था, हमने पढ़ा था कि अपना जो कैपिटल था वो राजगृह से कहां से चेंज करके उन्होंने पाटलिपुत्र की तरफ आ गए, ठीक है, और उसका नाम चेंज कर दिया, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र कर दिया। उसके बाद इट वाज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न एम्पायर, हमें पता है, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया। और बेसिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका इम्पोर्टेंस जो है लेटर, जैसे कि बाय इनिशियली मगध ने स्टार्ट किया, मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे अराउंड उस टाइम पीरियड में भी हम अगर बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज था एशिया में बिकॉज पूरे एम्पायर का सेंटर ही वही होता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लगा। जब हमारे यहाँ पे इंडिया में चाइनीज पिलग्रिम जुआनजैंग आए थे 7th century CE में, तब उन्होंने बोला कि ये जो एरिया है ये बेसिकली अब इसमें बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और ऑलमोस्ट ना
ये जो एरिया है मतलब इतनी अभी तक डेवलप नहीं है, यहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम में या फिर थोड़ा सा आगे जब मूव करेंगे तो हो सकता है उस सिटी की इम्पोर्टेंस कम हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस एंड सिचुएशंस। बट ओवरऑल जब वो स्टार्ट हुए थे, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मतलब 6 सेंचुरी बीसीई से 6 सेंचुरी सीई तक, तब तक ये जो एरिया है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमारी नई सिटीज कैसे डेवलप हुई थी इन दिस टाइम पीरियड। ओके, एंड अब हम देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, द इलीट, द क्राफ्ट पर्सन, इन सब के बारे में भी अपने को थोड़ी सी ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड के लोगों से रिलेटेड आइडिया होनी चाहिए। तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो किंग और रूलिंग एलिट्स जो है वो कहाँ पे रहते थे, फोर्टिफाइड सिटीज। फोर्टिफाइड सिटीज क्या होती है, बेसिकली जिनके चारों तरफ जिन सिटीज के चारों तरफ वॉल जैसे बने हुए। ठीक है, तो ये वाले जो हम बोलेंगे, ये जितना भी एरिया है ये जनरली क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था। और अगर हम इन एरियाज में एक्चुअली में एक्सकवेशन करना चाहें तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी भी इन एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। whether we talk about Mathura, whether we talk about Patliputra, that is Patna, जिस भी एरिया की हम बात करें, यहाँ पे अभी पीपल आर लिविंग इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पे डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा है। So obviously to tell people that you need to move from here because we need to do excavation, because we want to know about the past and the history, obviously is not possible. So इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस करना ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पीपल इन दीज एरियाज इवन लिव टुडे। तो अपने पास जितने भी एविडेंसेस हैं, एक वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हमें फिर भी मिल गए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ के इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो अगर हम जैसे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमें इस एरिया से बहुत फाइन पॉटरी मिली है। ठीक है, और जनरली जैसे कि बोल्स मिले हैं, डिशेस मिले हैं, जिनकी है ना एक अलग ही ग्लॉस, मतलब उसमें एक अलग ही शाइनी जैसी फिनिश है। ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये जरूर रिच पीपल करते होंगे। एंड इसके अलावा हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स, वेसल्स मिले हैं, वाइड रेंज ऑफ बाकी ऐसे मटेरियल भी मिले हैं जिनको हम बहुत एक्सपेंसिव मानते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी। इसके अलावा ग्लास, शेल और टेराकोटा के भी मटेरियल्स मिले। नाउ अगेन यहाँ पे अपने को एक दो और चीजें ध्यान रखनी है कि हम इस जो जैसे हमने स्पेसिफिकली बात की कि यहाँ पे बहुत फाइन पॉटरी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नाउ बेसिकली इनको अपना नाम कहाँ से मिला है, ये अपने ना इंडिया के मतलब वो जो पूरी एम्पायर है, जनरली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हमारा सब कॉन्टिनेंट है वहां से मिली है। और है ना ये ब्लैक कलर की है और इनमें एक अलग ही टाइप की शाइन है, शीन है। ठीक है, फाइन एकदम शाइन है, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो इसीलिए नाम आया है। उसके बाद हमें पता है कि ये बहुत सारी और चीजें जो है हमें मिली है रिगार्डिंग, अगर हम मटेरियल सोर्सेस की बात करें, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, वेपन्स हो, वेसल्स हो, एंड सर्टेन काइंड ऑफ मे बी स्टैच्यूज हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, कोई भी ये चीज हो। ठीक है, सो बेसिकली हम यही देखेंगे कि इनके अलावा भी ऑब्वियसली और कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे कि ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा होगा जैसे कि क्लॉथ से रिलेटेड, वो भी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर होगा। तो हमने ऐसी कुछ अपने पास एविडेंसेस आए हैं, मतलब बेसिकली रिटर्न मैटर में कुछ कुछ हमें ऐसा पता चला है। ठीक है,
कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो बेसिकली ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था यहाँ पे। बहुत सारे और सेंटर्स जिनके हमने बात किया उनके अलावा जैसे वाराणसी, मदुराई, ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उसके बाद अराउंड बाय सेकेंड सेंचुरी बीसीई हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्क्रिप्शन है काफी नंबर ऑफ सिटीज के, जिसमें बहुत कुछ और भी अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। नेम ऑफ द डोनर यानी किसने डोनेट किया है, और उसके बाद किसी किसी में उनका ऑक्यूपेशन भी लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन की जिसने डोनेट किया है वो बेसिकली क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चलता है अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स। भाई वीवर्स थे, स्क्राइब्स थे, कारपेंटर्स थे। अगर मैं बोल रही हूँ गोल्ड के मटेरियल मिले थे तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है, गोल्ड स्मिथ भी होंगे। देन उसके बाद हमारे पास इवन रिलीजियस टीचर्स थे, ऑफिशियल्स थे, किंग्स थे। दैट मीन्स वी हैड डिफरेंट वैरायटी ऑफ यू कैन से वे ऑफ अर्निंग। लाइवलीहुड के अलग अलग तरीके थे उस टाइम पीरियड। ठीक है, और ये हमें इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है आफ्टर दी सेकेंड सेंचुरी बीसीई। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अपने को इंस्क्रिप्शंस में एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्राफ्ट एंड नाउ वी आल्सो हैड अ काइंड ऑफ यू कैन से डिस्कशन ऑन किस वर्क में लोग इन्वॉल्व रहते थे। तो हम मर्चेंट और ये जो ट्रेड है इनसे रिलेटेड ही कुछ और चीजें भी पढ़। ठीक है, पहले तो ये जो क्राफ्ट पर्संस और मर्चेंट्स है, इन लोगों ने अब एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन बनाते थे मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, इनको हम बोलते हैं श्रेणीज। ठीक है, व्हाट आर दे कॉल्ड, श्रेणीज। एज यू कैन सी ऑन योर स्लाइड एज वेल, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इनको हम गिल्ड्स या श्रेणीज बोलते हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ये जो श्रेणीज थी क्राफ्ट पर्सन की, ये ट्रेनिंग देती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती थी और फिनिश प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाती थी। और ये श्रेणीज जो है मर्चेंट्स की, मर्चेंट्स वाली श्रेणीज ट्रेड ऑर्गेनाइज करवाती थी। मतलब क्राफ्ट पर्सन वाली जो श्रेणीज है वो सारा अरेंजमेंट करती थी कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, और जो ये लोग हैं श्रेणीज ऑफ मर्चेंट, ये ट्रेड ऑर्गेनाइज करते थे। इतना ही नहीं, ये जो श्रेणीज है दे इवन समटाइम्स सर्व्ड एज बैंक्स, बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास पैसे होते थे तो ये बैंक्स जैसे भी करते थे, जहां पे रिच मेन और विमेन जो है वो अपने पैसे डिपॉजिट करते थे। तो ट्रेडर्स उसको ऑब्वियसली आगे यूज कर लेते थे फॉर ट्रेडिंग, बाइंग थिंग्स बिफोर, ऑब्वियसली सेल करेंगे उसके बाद पैसे आएंगे, तो खरीदने के लिए जो पैसे वो उनके पास होते थे, और बाद में वो उनको क्या दे देते थे, एक इंटरेस्ट दे देते थे उस पैसे में। तो एक तरीके का बैंक हो जाता था जहाँ पे रिच मैन और विमेन जो है वो क्या करते थे, पैसे डिपॉजिट करते थे। एंड एज आई सेड दिस वाज इन्वेस्टेड, और उसमें से एक पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न कर दिया जाता था, या फिर इट वाज समटाइम्स इवन यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट आवर श्रेणीज। तो ये जो गिल्ड्स और श्रेणीज है ये ऑर्गेनाइज करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन, और मर्चेंट्स की जो श्रेणीज होती थी एज आई सेड की रॉ मटेरियल्स और ये सब प्रोक्योर करते थे। उसके बाद फाइनली जो मर्चेंट्स है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो जो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में चीजों की डिमांड भी बहुत बढ़ गई थी। जैसे जैसे टाउन्स और सिटीज होंगे वैसे वैसे क्या होंगे अपने पास, बहुत सारे हम बोलेंगे दूसरी चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण जो प्रोडक्ट्स वहां पे मैन्युफैक्चर और सोल्ड होते होंगे वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एज आई सेड इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इस टाइम की जो इंस्क्रिप्शन है वो अपने को एक स्पेशल टाइप की जो मिलती है उसको बोलते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन। तो ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस है ये जनरली रिकॉर्ड होती है जब आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट देते हो। तो ये बेसिकली अलग हम इसलिए रखते हैं, बहुत शॉर्ट काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन होती है जिसमें बस डोनर का नाम और उसकी ऑक्यूपेशन जैसे लिखी होती है जनरल। ठीक है,
तो हमें पता चल गया ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस टाइम पीरियड तक। अपने पास गिल्ड्स और श्रेणीज ऑर्गेनाइज हो गई थी, अपने पास बेसिकली बहुत सारा हम बोलेंगे एक कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया था ट्रेड में भी, और जिसके कारण हमारी सिटीज जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। और हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसी टाइप पे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो ऑब्वियसली बहुत सारे आयरन टूल्स भी यूज करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि इस समय पे हम देखेंगे कि जो डिमांड है अर्बन एलिट्स की वो क्या थी, वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, सो हम यहाँ पे बस यही देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, so now we also need to look at the other aspects of ट्रेड एज वेल। ट्रेड में ही और अगर हम इसको और आगे पढ़ना चाहें, आगे समझना चाहें, वो भी देख लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड ही हम आगे चीजें देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि अराउंड फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE में लैंड और रिवर रूट जो है वो क्रिस क्रॉस करती थी। क्रिस क्रॉस मतलब समवेयर जैसे कि एक दूसरे को, या वैसे मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती थी। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे हैं अबाउट यू कैन से जो जितना भी हमारा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग द ट्रेड। अब हम ये देखेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में हो रही थी, यानी सेंट्रल एशिया की साइड भी हम ट्रेड कर रहे थे, हम ओवरसीज भी कर रहे थे। अपने पास हमने देखा है अरेबियन सी से एक्सटेंड होके ईस्ट तक हमारा ट्रेड हो रहा था। हम नॉर्थ अफ्रीका तक भी ट्रेड कर रहे थे, वेस्ट एशिया में भी कर रहे थे। ओके, ऑब्वियसली हम बे ऑफ बंगाल से भी कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया की साइड कर रहे थे ट्रेड, और चाइना से भी कर रहे थे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देखेंगे रूलर्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे थे इन रूट्स को कंट्रोल करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड, वी एज अ कंट्री हैज बीन डूइंग ट्रेड सिंस लॉन्ग। इवन हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की थी तो हमने क्लियरली देखा था कि we have lot of evidences that we were having trade with the Mesopotamian civilization, with you can say other far away areas तक भी हमारे trade relationship थे, क्योंकि हमें evidences मिले। तो obviously इस time period तक भी अपने evidences बहुत सारे हैं कि हमारा जो trade है वो world के बाकी बहुत area के साथ था। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें सेंट्रल एशिया में था, उसके आगे पीछे भी था। उसके अलावा अगर अरेबियन सी वाली रूट की साइड बात करें तो अरेबियन सी से हम नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया की साइड क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अगर बे ऑफ बंगाल वाले रूट की साइड से देखो तो हम साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अब जब आप इतना लंबा ट्रेड रूट यूज करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, उस ट्रेड रूट पे देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ यू कैन से फेयर कि कुछ अटैक हो सकता है ऑफ मे बी पीपल बिलोंगिंग टू यू कैन से जो मतलब थीफ या रॉबर्स, ये जो ऐसे वाले ग्रुप है उनका हमेशा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डर रहेगा दैट दे मे समटाइम्स maybe they'll attack the area, और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज जो वो सामान लेके जा रहे हैं वो या तो बीच में जो है चुरा लिया जाए, अटैक कर दिया जाए, या फिर ट्रेड करके अगर वापस इफ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ यू कैन से गोल्ड या कॉइन्स, जो भी जिस भी हिसाब से उनकी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हो सकता है कि somewhere it may have been attacked by people and then grabbed over, है ना। तो इससे रिलेटेड रूलर्स ने क्या किया था, रूलर्स ने यही बोला कि we will be providing you certain kind of protection through these routes, यानी जो भी रूलर उस रूट पे रूल कर रहा है वो बोलता था कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट इन रिटर्न ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे सम प्राइस। ठीक है, so this is if we talk in terms of you can say कि अगर हम बोले कि ये जो सी रूट्स है इनको प्रोटेक्ट करने की बात आए, ये वाली चीज। ठीक है,
तो अब हम इसी से रिलेटेड अगर देखें तो रूलर्स ये तो बोल रहे थे कि वी विल काइंड ऑफ प्रोवाइड यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, बट इन रिटर्न भाई दे वांटेड गुड, यू कैन से शेयर इन द काइंड ऑफ ट्रेड, या उनको प्राइस चाहिए. Now those who basically travel through these routes included peddlers who probably traveled on foot, and merchants even who traveled in caravans of bullock carts या pack animals. तो यानी ये जो लोग ट्रैवल करते थे वो पेडलर्स भी होते थे, जो फुट मर्चेंट्स ऐसे करके होते थे, जो या तो पैदल जाते थे या फिर कारवास पे कुछ एनिमल्स में, कुछ बुलक कार्ट्स में ऐसे करके जाते थे. इसके अलावा अपने पास ये भी है कि सी फारर्स मतलब क्या है, इंडिया से बाहर अगर ये जाते थे, सब कॉन्टिनेंट से बाहर ट्रेड करने जाते थे, तो वो प्रॉफिटेबल तो बहुत होता था बट वो रिस्की भी बहुत होता था. ओके, सो हमें पता है वो बहुत इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, बट देन इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी रिस्की एज वेल. तो जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे उनको एक स्पेशल टर्म दी जाती थी तमिल में, उसको बेसिकली टर्म थी मासाथुवन. ठीक है, तमिल में. और सेठीज बोलते थे बेसिकली साउथ वाले तमिल एरिया में, और उनको बोल देते थे सतवाहास इन प्रकृत, जो एक्चुअली ट्रेड के बाद क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा रिच हो गए. ऐसे लोग जो है जो ट्रेड करके बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनको हमने क्या किया है, बहुत सारे टर्म्स दे दिए. ठीक है, नाउ इसमें हम यही देखेंगे कि काइंड ऑफ गुड्स दैट वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, दे वर यू कैन से वेरीड, बहुत डाइवर्स थे. सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, चाहे स्टोन के हो, टिम्बर हो, इवन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी ट्रेड किए जाते थे. एंड यू नो इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस. पेपर जो है वो बहुत हाई डिमांड में थे रोमन एम्पायर में. इसके अलावा टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे भी जो हैं ये हमारे अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन सी तक क्या किए जाते थे, ट्रेड किए जाते थे. सो एज आई सेड क्लास की ट्रेड जो है इट बिकेम रियली इम्पोर्टेंट, एंड एज आई सेड कि बहुत सारी चीजें जो है ट्रेड की जाती. तो जैसे कि हम देखते हैं अबाउट अगेन, और जैसे हम देखें साउथ इंडिया हमारे गोल्ड, स्पाइसेस, इन सब के लिए तो बहुत फेमस था ही. एंड एज आई जस्ट सेड पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स. एक जस्ट लेट मी टेल यू वन रेफरेंस. जब हम बार बार पेपर की बात करें, पेपर जो है रोमन एम्पायर में इतना उसकी डिमांड थी और इतना वैल्यू किया जाता था कि इट वाज इवन नोन एज ब्लैक गोल्ड. मतलब कंपेयरिंग इट विद गोल्ड एंड कॉलिंग इट ब्लैक गोल्ड इन इटसेल्फ टेल्स अस कि कितना वैल्यूएबल था और लोग उसकी ट्रेड करना चाहते थे. सो मेनी ट्रेडर्स बेसिकली कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स. और स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर हम रोम का एग्जांपल ले तो अक्रॉस द सी कारवास के थ्रू जाते थे. एंड ऑब्वियसली जनरली हम देखेंगे कि ट्रेड बहुत ज्यादा होता होगा, और स्पेसिफिकली हम कैसे बोलेंगे कि रोमन से ज्यादा होता था. और रोमन एम्पायर से सबसे ज्यादा ट्रेड जो है हमारा सदर्न इंडिया का होता था, क्योंकि हमें इस एरिया से रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे मिले. we have really got lots and lots of, you can say, evidences regarding the gold coins of this time period from the Roman Empire. And specifically हमें मिले कहाँ है, specifically हमें ये मिले हैं in the southern area. Now, so when we are talking about the coins, we will be moving on to the coins, which is our next topic. But before that, I just want you to look at your screen and understand, अगर इस टाइप की जो शिप इन्होंने दिखाई हुई है, पूरा जो एक तरीके का रूट दिखाया हुआ है, नीचे देखो सी है और कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इसी से हमें सिग्निफिकेंस पता चल जाता है ट्रेड का. और बेसिकली सी रूट से, चाहे वो अरेबियन सी की साइड से हमारे बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे अफ्रीका की साइड हो, या फिर वेस्ट एशिया की साइड हो, या फिर बे ऑफ बंगाल से हमारे टुवर्ड्स दी अदर पार्ट्स ऑफ एशिया हो. ओके,
तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि ट्रेड वाज रियली इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली between the subcontinent itself, in the subcontinent itself, but we were also having good trade with the other parts of the world, whether it was Africa, it was maybe the other sides of Asia, whether it was West Asia या फिर Eastern Asia, Southern Asia, जैसे इन सारे एरियाज में अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस थे। ठीक है, सो एज आई सेड कि अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस है अबाउट दीज। आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द स्टोरी दैट हैज बीन रिटन अबाउट वन ऑफ द एरिया, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है बारिया गाजा। ठीक है, वो एक्चुअली में ग्रीक टर्म था किसका, बारूच का। ये एक जगह है अपने नर्मदा रिवर के अराउंड है गुजरात में। तो इसमें एक डिस्क्रिप्शन है कि एक नैरो गल्फ है इस एरिया में, बहुत मुश्किल है नेविगेट करना, पर यहाँ पे स्किलफुली शिप्स आती हैं, लोकल फिशरमैन भी होते हैं जिनको किंग ने एम्प्लॉय किया गया है। और जो इंपोर्ट इस एरिया से होती है वो है वाइन, कॉपर, टिन, लेड, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, और एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयन, आइवरी, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स। ठीक है, तो यानी इंपोर्ट भी होता था। यहाँ पे जो बारूच एरिया है या बड़िया गाजा जो हम बोलते हैं, वो लोग जो ग्रीक ने टर्म यूज कर रखा है, तो वाइन, कॉपर, टिन, लेड, ये जो चीजें, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, क्लॉथ, कॉरल वगैरह, ये इंपोर्ट करते थे और